Plastic pollution is a big problem not just in our country but worldwide. Not only does plastic pollution directly impact marine life, its production releases billions of kg of CO2 into the atmosphere. Plastic pollution also carries disease long distances across the ocean, causing coral sickness where it lands. While plastic is durable, this also means plastic waste can be trapped in our environment for centuries if not managed well. And the fact is, 300 million tons of plastic is produced every year, out of which only 9% of all plastic produced is recycled. But we believe that everything is possible with the right dedication and creativity. And our company Replast has come together to provide a solution by manufacturing safe and beautiful pavement blocks and floor tiles for residential and commercial purpose through processing the recycled plastic. We are committed to our mission of supporting the initiative of plastic recycling, and we aim to contribute toward a sustainable development in the long run. Now, talking about our product, our plastic pavement blocks are produced with a chemical blend using best blend of multiple materials. These pavement blocks having plastic in them can be widely used for outdoor constructions in the residential and commercial sectors. Our products are unbreakable, durable, anti-static and available at competitive prices. We have variety of shapes and colors of tiles like dumbbell, Milano, hexagon, square, etc. The recycled plastic tiles, however, are unbreakable. The strength of both the tiles are relatively similar, but the durability of recycled plastic tiles is more than the ceramic tiles. Hi, my name is Rajiv Rana. I am the founder of Replast, which is an initiative of Rana Infra Projects Private Limited. It's a Gurgaon, Haryana based company. Replast जैसे आप देख सकते हैं re and plast, so that means we are working on the plastic and especially plastic for the plastic waste. So हम प्लास्टिक को रीमॉडल करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं and these products are for the construction materials products. These are the eco-friendly products which can be used for the construction. इसमें हमने दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाए बेसिकली. एक होता है हमारा सरफेस के लिए और दूसरा है हमारा वॉल बिल्डिंग्स के लिए. तो सरफेस की अगर बात करें तो इसमें हम इंटरलॉकिंग टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स बनाते हैं, और अगर वॉल्स की बात करें तो हम लोग फ्लाई ऐश की हेल्प से ब्रिक्स बनाते हैं. फ्लाई ऐश बेसिकली एक इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलने वाला एक लाइक इट्स ए काइंड ऑफ वेस्ट ओनली, इट्स इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जनरली एनटीपीसी से आता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. ये एक रेसिड्यू होता है जो ऐश होती है बेसिकली. जो हमारी ट्रेडिशनली ब्रिक्स यूज होती आ रही है वो सारी रेड क्ले ब्रिक्स हैं. सो ये बेसिकली इसका एक सब्स्टिट्यूट है रेड क्ले ब्रिक्स का, जिसमें बेहतर स्ट्रेंथ है और कॉस्ट इफेक्टिव आता है, और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि हम इसमें वेस्ट यूज करते हैं. वेस्ट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर सभी वेस्ट को ही टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं. जैसे अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो ये प्लास्टिक वेस्ट हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, मल्टीलेयर प्लास्टिक होता है. तो हमारा बेसिकली मेन मोटो है इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को करना, मल्टीलेयर को यूज करना. सेकेंड आता है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट में जैसे हम कॉपर स्लैग होते हैं बेटर बाइंडिंग के लिए और क्रैक फेल्योर के लिए यूज करते हैं, प्लस फ्लाई ऐश होता है. और कॉस्ट हमने जैसे कि हमने बताया कि हम लोग वेस्ट वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट ट्रेडिशनल और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इज द सेम एज लाइक ट्रेडिशनल. इसकी ड्यूरेबिलिटी कंपैरेटिवली इसकी ज्यादा होती है, और स्ट्रेंथ की बात करें तो नेचुरली ये बेहतर प्रोडक्ट. सो हमें आइडिया आया था रेड क्ले ब्रिक्स का सब्स्टिट्यूट निकाला, जो हमने फ्लाई ऐश वाली ब्रिक्स निकाली. फिर धीरे धीरे हमने फ्लाई ऐश पे काफी सारा काम किया और हमने बहुत सारी साइट्स पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूज किया. बहुत ही एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा. देन फ्लाई ऐश से आया हमें ड्यूरिंग द लॉकडाउन, खास करके पैंडेमिक में. मैंने आई डिड सो मच ऑफ रिसर्च ओवर द इंटरनेट एंड फाउंड समथिंग कैन बी मेड थ्रू आउट ऑफ द वेस्ट. तो उसमें प्लास्टिक सबसे ज्यादा लग रहा था, जो एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा पॉल्यूट कर रही थी. हमारे शहरों में सब जगह ये बड़े बड़े लैंडफिल्स तैयार हो गए हैं,
सारी जगह हमारा वेस्ट जितना भी जाता है म्यूनिसिपल्स एक ड्राई और वेट फॉर्म में लेके जाता है, बट वो सारा नहीं ले पाते। तो अगर हम गुड़गांव की बात करें तो बंदवाड़ी में बहुत बड़ा एक वेस्ट मतलब काइंड ऑफ किलोमीटर की हाइट कवर गया है। पहले हमारा दिल्ली में गाजीपुर वाले एरिया में सारा लैंडफिल तैयार हो गया है, लेकिन वो हमारी सॉइल की क्वालिटी को बहुत डैमेज कर रहा है, हमारे वाटर बॉडीज को कंटामिनेट कर रहा है, हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है। तो हमने प्लास्टिक पे कुछ काम करना शुरू किया। तो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन लाइक द पैंडेमिक वाली में मैंने बहुत सारा इंटरनेट पे सर्च किया और मैंने छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स अपनी पहले घर पे किए, फिर मैंने एक यूनिट पे बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट किए और ये काफी बेहतर स्ट्रेंथ के साथ में हम लाए, जिसमें हम प्लास्टिक को कंज्यूम भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को एक क्लीन भी कर रहे हैं और प्लास्टिक की समस्या को हमारा मेन टारगेट रहा है। तो हमने प्लास्टिक से एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया। अब नहीं चैलेंज है तो नहीं, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर कमर्शियल प्लेस पे, रोड्स पे, पेवमेंट्स पे, पार्किंग लॉट्स में, हर जगह ये प्रोडक्ट यूज होता है। तो इसकी कंजप्शन की बात करी जाए तो इसकी ह्यूज कंजप्शन है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए, क्योंकि ब्लैक टॉप वाले अगर रोड्स की बात करें तो ब्लैक टॉप के अलावा ना जनरली पीपल इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर कोई पैच डैमेज भी हो जाता है अगर वाटर लॉगिंग की वजह से, तो ये सिर्फ एक पीस निकालना होता है और दोबारा से लग जाता है। तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्राइट है और डेफिनेटली इसका स्कोप आने वाले टाइम में और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। प्रोसेस भी बहुत यूजर फ्रेंडली है और जितने भी हम लोग कोई टॉक्सिक फ्यूम्स या हीट जनरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। अगर प्लास्टिक की सबसे पहली बात करूं, सबसे पहले इसको रिड्यूस करो। अपनी जितनी भी कंजप्शन है हमारी डेली लाइफ में, सबसे पहले उसको रिड्यूस करो। अब जितना बन गया उसको तो अल्टीमेटली कंज्यूम तो होना ही है वो, बट फर्दर ये कि आप जितना कम से कम हो कम कीजिए। अगर कोई चीज है उसको रीयूज करिए और रीयूज करने के लिए अगर कुछ है तो रिसाइकिल करने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग में भेज दीजिए। Also join us to end this plastic pollution by visiting our website Replast, Remodeling Plastic.